देखिए, today is 26 January. Yesterday in United States, there is a gentleman, his name was Alex Pretty. And I don't know how many of you know about this guy, but he's all over on the internet. He was simply standing with people who were protesting against these immigration raids, right? ICE. ICE is a police in US. Their job is to capture illegal immigrants. So they say this guy was supporting people who were there illegally and protesting against the state, against the government. Now, think about for a situation in India, we are celebrating Republic Day. Constitution was made on this day. We work for American clients. We know the ethics of that country. We know how professionally work is done in America. Even in that country, a young man, 37-year-old, he was American. He was not even an immigrant. He was killed on the road, point blank on his head, amongst people, and nobody could do anything. Police took his body. It's more than 24 hours now. And they are not responsible. They are not taking any blame on them. Police version is that whatever they have done as per the law. How powerful is law? Now, if that would have happened in India today, you have seen mass protests here. You have seen people going to Jantar Mantar. You have seen people going to India Gate. And if someone is killed by police here, like this, it would have been a disaster. In US, there are people who are protesting it. You can see the videos, but that protest is not violent. That protest is not violent despite of all this displeasure. Nobody is happy about it. Nobody is happy about it. Even I'm not happy about it. A lot of people, a lot of immigrants are not happy about it. And I have seen videos where police was questioned in front of people on the press, on the media, on TV. And nobody is able to, police is giving their word on that we are right. Whatever we did as per the law. This guy had a gun in his hand, but he was not using that gun. It is debatable. Policeman thought he is going to use it and he may kill me. But he didn't use it. He has it in his pocket. Lawfully, people who are licensed in US, they can carry a gun. So what could be a better example of freedom on constitutional and protection by the Constitution on this day, on 26 January, when we are celebrating this Republic Day here in India. The reason I am bringing you this, follow a law, knowingly or unknowingly, it doesn't matter. But one has to follow the law. But at some point, what is the definition of a law when a person like take it as a personal misinterpretation or interpretation. Now, somebody like me will say, police killed him. Because he had the gun, but he didn't take out the gun. So what was the reason police killed him? Police say he had the gun. We had the right to kill him. What if he would have used it? If he would have used it, he would have killed one of us. आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? तो think for 1 second. Here in India,
you guys, most of you who come in the cab, I have been watching your cabs break laws every day. Nobody stopped on red light. They're always in rush. You guys take, like 3 days ago, some people, a 4-year-old young kid fell off from a tempo and a car crashed her. 4-year-old, because they did not stop at red light. How important it is to stop at red light. And what could be more clear than this? अनपढ़ पढ़ने की भी जरूरत नहीं। रेड लाइट है आप रुको, ग्रीन लाइट है आपको चलना। इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या होगी? अगर हम उतना फॉलो नहीं कर सकते तो बाकी के तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लॉज हैं वो तो भूल जाओ। तो हमारे यहाँ पे अटॉर्नियों को भी पता नहीं। Think for that moment. So how important it is when we talk about Republic Day? We should celebrate Republic Day every day in our life. At least for basic laws, which protects humanity, which protects dignity, no discrimination. These are the basic things. Now, I would come back to the same incident. पूरे अमेरिका में अभी हल्ला मचा हुआ है। 2 दिन 3 दिन ये हल्ला चलेगा रहेगा। एक बार बहुत पहले केस हुआ था, ओबामा का स्टेटमेंट आया है आज। लॉन्ग टाइम बैक व्हेन ओबामा बिकेम द प्रेसिडेंट, a black guy forgot his keys somewhere and he went to his own home and he was trying to break in. ताला तोड़ रहा था। खुद का ही घर है, उसका आईडी कार्ड भी अंदर रह गया, लॉक लग गया, लॉक को वो तोड़ रहा है। पुलिस आ गई, किसी ने शिकायत कर दी। पुलिस कहती है मुझे आईडी दिखाओ, उसके पास आईडी नहीं। पुलिस ने कहा आप ताला तोड़ नहीं सकते। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। ओबामा ने उसी समय स्टेटमेंट दिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक गाय। पुलिस उसके ऊपर, बिकॉज पुलिस ने अपने दिमाग में छवि बना ली एक ब्लैक की कि ये ब्लैक आदमी है तो ये किसी न किसी का घर तोड़ रहा हो। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में बनी हुई ना सर्टेन रेस, सर्टेन वो बनी हुई है कि ये इस तरह के इस बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो हो सकता है ये चोर हो, ये इस बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो हो सकता है टेररिस्ट हो, या इस बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो ये माइंड में होता है ना ये। तो ओबामा ने वो स्टेटमेंट दिया और उसको अभी 2 दिन हुए थे प्रेसिडेंट बने हुए, सिर्फ 2 दिन। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज देयर। पूरे अमेरिका में हल्ला हो गया, हाउ कैन अ प्रेसिडेंट मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट? He might be a president just because he is black, he is favoring blacks. He had to apologize in 2 days कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। Now I am a president, it is my duty कि मैं सबको एक साथ लेके चलूं और मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे लिए कोई भी ना ब्लैक है, ना व्हाइट है, ना कोई और है, सब एक समान है। So मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सब लीडर बन जाओ, ओबामा की तरह सोचो, मोदी की तरह सोचो, जरूरी नहीं मत सोचो, लेकिन जो लॉज हमको एवरी डे अफेक्ट करते हैं कम से कम उसके लिए तो अवेयर हो। इट इज एवरी डे इन इंडिया वी नो कि बाहर कचरा भरा है। हमारे यहाँ पे निगम की गाड़ियां आती हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे आपके यहाँ निगम की गाड़ी कौन लेके आता है, जानते हो? आपके यहाँ डेली कचरा कौन उठाता है? आप लोगों में से कितने लोग हैं उनको जानते हो? कभी उनसे पूछा, कभी बात करी कि भाई आज कचरा नहीं उठा, कल का कचरा बदबू मार रहा है, 2 दिन हो गए, 10 दिन अगर वो कचरा नहीं उठाएंगे फिर तो करोगे, वो बदबू आएगी। और अभी अगर वो काम नहीं करके जा रहे हैं, पड़ोसी के छोड़ के जा रहे हैं, कहीं और छोड़ के जा रहे हैं, आपने कभी पूछा? सिमिलरली इतना करप्शन है, रोड्स टूटी पड़ी, पता नहीं आप लोगों, मेरे घर की रोड 3 साल से टूटी पड़ी। दे आर द पीपल जिनको आप वोट देते हैं। कोई ना कोई पार्षद होगा, कोई ना कोई वहां पे काउंसलर होगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा होता होगा जो आपके पास वोट मांगने आता होगा। मेक हिम अकाउंटेबल।
पूछने में, एजिटेट होने में कोई बुराई नहीं है। किन मुद्दों पे एजिटेट होना है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। उस बंदे को, एलेक्स को गोली मारी पुलिस वाले ने। अब जिस पुलिस वाले ने गोली मारी, 4 पुलिस वाले थे। उस एक को डर लगा, उसको लगा कि इसकी जेब में पिस्तौल है, अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। या उसको ये लगा कि अगर मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशन, एज ए पुलिस मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है, अगर कोई वायलेंट होगा तो हम उसको मार सकते हैं, तो मैं अपनी पावर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करूं। बाकी 3 एग्री नहीं करते होंगे उससे, लेकिन सबके पास में पिस्तौल थी, मारा है कि नहीं। उसको पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग, बट आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। जितने पुलिस स्टेशन है इंडिया में, दे हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत पावर दी हुई है, बट वो क्या चीज सोचते हैं? वो अपने तरीके से चीजें सोचते हैं। ज्यादातर चीजें में उनका इंटरप्रिटेशन जो होता है किसी न किसी थर्ड पार्टी से ड्राइव होता है। थर्ड चीज पार्टी क्या होती है? कोई ब्राइब होता होगा, किसी का इन्फ्लुएंस होता होगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता होगा, और एक तीसरा एंगल होता है कंपैशन। वो खुद ही पुलिस वाला सोचता है कि यार ये ठीक नहीं बोल रहा है जो बोल रहा है, ये हो सकता है ये ऐसे बेवकूफ बना रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं सॉल्व नहीं होते, क्योंकि पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया, जाने दिया, आउट ऑफ कंपैशन की और प्रायोरिटी है लाइफ में, छोड़ दिया। अब अगर वहां पे वो कानून फॉलो करते तो ऐसे तो पता नहीं एलेक्स जैसे तो कितने केसेस अपने आप हो जाते हैं यूएस, इंडिया में। क्योंकि यहाँ पे तो आदमी हर छोटी छोटी चीज में एजिटेट हो जाता है, हर छोटी छोटी चीज में मारने पीटने को उतर आता है। तो वी हैव टू सी द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन आवर माइंड as well as in the people's mind who are around us. हमेशा यही नहीं होता कि जो आपने सोचा वही ठीक है। जो सामने से दूसरा बंदा भी सोच रहा है, वो भी कुछ, आपकी जिम्मेवारी यह है कि आप ये भी सोचें कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। जब दोनों पार्टियां, और लॉ इसीलिए बनाए कि सभी लोग एक स्टैंडर्ड लॉ को फॉलो करें, कि जब अगर आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, तो ठीक है, जो लॉ है आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो लॉ इज काइंड ऑफ ब्रिज वेयर पीपल हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग एट सिंगल प्लेटफॉर्म टू लिव देयर लाइफ पीसफुली। नाउ व्हेन दैट डजंट हैपन, और एक तो बहुत पावरफुल हो गया और एक जो है बिल्कुल वो खत्म हो गया, और तो देन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन केम which we saw in Alex, कि मुद्दा तो कुछ और चल रहा था। मुद्दा चल रहा था those who are illegal immigrants, जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो कहीं इनके पास में लीगल रहने का राइट नहीं है, वीजाज नहीं है, वो लोग वहां पे आ रहे हैं। अब उन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था, ये वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते बनाते पुलिस वालों को लगा कि ये शायद उनको सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको हटाया तो आपस में कुछ कहा सुनी हुई होगी, कहा सुनी हुई तो उसको नीचे पटका तो देखा उसके पास में गन है। अब ये उनको सोचना चाहिए था, भाई गन है, लेकिन उसने गन तो तुम्हारे को ऊपर दिखा नहीं रखी ना, लेकिन उन्होंने ये तो सोचा नहीं। एंड चूंकि उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, राइट थी, उन्होंने लेके उसको उठा दिया। नाउ अगर उनके ऊपर कोई वहां पे बॉस होता तो वो हो सकता है ये सोचता कि भाई तुम 4 पुलिस वाले हो, तुम चारों सेम रैंक के आदमी हो, 1 मिनट उसको उड़ाओ मत, पहले उसको कंट्रोल में कर दो, फिर देखेंगे कि उसको मारना है कि नहीं मारना। लेकिन इतनी देर में तो कुछ और हो सकता है, क्योंकि एक आदमी का दिमाग फिरा हुआ था उन 4 में से। उसको ये लग रहा था कि ये बंदा, इसको तो मेरा सबक से हूं, और वहां उसने अपनी पर्सनल पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बना के काम में ली। उसने ये नहीं सोचा कि इसका क्या असर सोसाइटी पे होगा और सिटीजन्स पे होगा, प्रेस में होगा, मीडिया में, उसने तो दिमाग नहीं लगाया।
उसने कहा मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली हुई है, आई विल शूट हिम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हमारे बहुत सारे केसेस होते हैं ना यहाँ पे, हमारे उसमें कोडिंग के केसेस आते हैं, क्लाइंट हमारा चला गया था, आपने जरा सा कुछ इग्नोर कर दिया, कुछ गलत लिख दिया, क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी मिल गई, भाई तुमने तो लॉ फॉलो नहीं किया, कौन जो चीज लिखी हुई थी उसको तो फॉलो किया नहीं, अपने मन से कर दी कोडिंग, नहीं रखना मुझे तुम्हारा। सो पीपल misinterpret or interpret law in their own favor most of the time. But when lawyers, leaders, police, those who understands law, if they misinterpret it, then it becomes a huge issue. Because आम जनता ये मानती है कि अगर जज है, लॉयर है, पुलिस है, लीडर्स हैं, आईएएस है, ये लॉ भी इनका धर्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन को निभाएं, कॉन्स्टिट्यूशनली डिसीजन मेकिंग करें, जजमेंटल एरर्स ना हो। दिस वाज प्योरली अ केस ऑफ जजमेंटल एरर। एलेक्स प्रेटी का जो केस है, इट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एरर इन समबडीज जजमेंट, चाहे वो पुलिस वाले की जजमेंट में एरर हो, चाहे वहां पे जो 3-4-5 लोग थे उनकी जजमेंट में एरर हो सकता है एलेक्स की भी जजमेंट में एरर हो, उसने भी हो सकता है गाली बकती होगी पुलिस वालों, कुछ तो किया ये ऑडियो आया नहीं, वीडियो आया। तो आपको ये देखना है एज अ सिटीजन आपका क्या रोल है, हाउ पावरफुल दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज इन योर हैंड, क्योंकि सड़क पे तो लड़ाई होने वाली है नहीं ना, लेकिन वो जो फ्लेम आपके अंदर है, जस्ट बिकॉज Constitution can be a very powerful force for yourself also. कभी ना कभी आपके जीवन में 1, 2, 3, 4 इंसिडेंट्स ऐसे आएंगे ही आएंगे जब आपको ये लगेगा कि यार साला ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता, फिर मेरे साथ ही ये क्यों अन्याय हो रहा है, और फिर आप खड़े हो गए। लेकिन आप कब खड़े हो गए, जब आपके ऊपर आएगी पर्सनली। मैं कह रहा हूं आपके पड़ोसी के भी आ रही है, आपके नेबर में भी आ रही है, आपके भाइयों के लिए भी आ रही है, बहनों, उनके लिए भी आप खड़े हो, तब जाके इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा। अदरवाइज इतने लोग हैं, इतनी पार्टियां हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने लीडर्स हैं, इतने लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट हैं, ये सब अपने अपने तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। कोई भी एक बंदा सही नहीं, हर एक की डेफिनेशन अपनी अपनी खुद की चलती है, उसका एक ही तरीका है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने कैरियर में, आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, कैरियर आपका अपने आप बन जाएगा। अगर आदमी 8 घंटे सारे दिन में काम करता है ना, तो उसको कैरियर की चिंता नहीं होनी चाहिए। कैरियर की चिंता उन लोगों को होनी चाहिए जिनसे काम नहीं हो। आप लोगों में से भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लेजी हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैरियर की चिंता करने की जरूरत है। तो इसलिए कैरियर और उसकी तो मैं बात आपसे नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट आर योर रोल्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर्तव्य बोध होता है, एक चीज होती है हिंदी में वर्ड होता है कर्तव्य बोध क्या है। आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज ये नहीं कि आपने डिग्री ले ली, ग्रेजुएशन कर लिया, वो नहीं है। डिग्री कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, 3-4 साल काम सीख लिया, वही काम करे जा रहे हैं, सारी जिंदगी उसी से रिटायर हो जाएंगे, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है कि आपको अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान है कि नहीं है। एज अ सिटीजन आपका क्या कर्तव्य है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है। और आप फिर एंड में आते हैं आपकी खुद के लिए, उसका आपको कितनी अवेयरनेस है, कितना बोध है, कितना ज्ञान है, कितनी विजडम है, वो है रियल एजुकेशन। और वो अगर आपने कर ली थ्रू आउट आपके कैरियर, वो सारी जिंदगी कैरियर चलती रहती है। कई बार हुआ यहाँ भी आप लोगों ने एजुकेशन किए, कभी कुछ डिसीजन हो गया, कभी कुछ हुआ, किसी को सैलरी नहीं मिली, कभी सैलरी डिले हो गई,
वो भेड़ चाल, वो भेड़ चाल। एक बंदे ने कह दिया कुछ, दूसरा बंदा उसके पीछे पीछे लग गया, तीसरा बंदा उसके पीछे पीछे लग गया। आप लोग कि ये तो हमारे साथ मास में अन्याय हुआ, वो भेड़ चाल हो जाता है। लेकिन कहीं आपके राइट्स दबाए जा रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी एग्जिस्टेंस पे खतरा आ रहा है, या कोई चीज ऐसी हो रही है जो क्रॉस आपको, जैसे वहां प्रोटेस्ट हो रहा है मान लीजिए, अब उस प्रोटेस्ट में कोई बंदा प्रेस का है, वो मीडिया से इंटरव्यू कर रहा है या कुछ फोटो ले रहा है या कुछ बना रहा है या कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उन लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन वो उनकी फिल्म कर रहा है, उनको बना रहा है। तो हो सकता है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बना रहा है। तो वही पुलिस वाले जो उसको मना कर रहे थे, अगर उनमें से किसी में दिमाग को इतना दिमाग लगाता, उसको रोक के उनसे पूछ लेता, भाई तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम क्या करना चाह रहे हो, व्हाट इज योर व्हाट, तो हो सकता है वो बच जाता है बंदा। बट चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको एम्पावर कर रहा था कि कोई भी आपके अगेंस्ट में बोले, आपको अपना जॉब करने से रोके, तो आप उसको गोली से उड़ा सकते हो। उन्होंने उसको उड़ा दिया और कुछ नहीं होगा इस मामले में। पुलिस वालों को कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर कर रहा है। तो आज भी जितने भी उसके आजकल परसों आप देखेंगे, कुछ भी नहीं होगा उन पुलिस वालों को। उन्होंने आउट ऑफ इरिटेशन उनको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया कि भैया इस इलाके से तुम हट जाओ, दूसरे इलाके में जाके पेट्रोलिंग कर लेना, इतना सा किया। तो जहां हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स के साथ साथ में क्लैरिटी भी होनी चाहिए। अब चूंकि वो अमेरिका है, इतना बड़ा देश है, पूरा पावरफुल देश है, वहां क्लैरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा है। ये डिबेटेबल इशू हो सकता है, तो फ्रीडम है, तो लोग राइट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं सड़क पे, कोई उनको कुछ नहीं कह रहा, पुलिस कोई कुछ नहीं कह रहा। हजारों लोग सड़क पे न्यूयॉर्क में है, मिनेसोटा में है, वहां है, कोई उनको कुछ नहीं कह रहा जब तक वो वायलेंट ना हो। आप पीसफुल रहिए, आप निकालिए, कितने भी निकालिए, हजारों लोग निकल रहे हैं, आज भी निकलेंगे, कल भी निकलेंगे, हो सकता है आंदोलन और बड़ा बने, एज लॉन्ग एज इट इज पीसफुल। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है, तो वो आंदोलन भी कर रहे हैं। और जो पुलिस वाले हैं उनको भी पता है कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनको उसको उड़ाने का उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी, दोनों पार्टियों को दे रखी। लेकिन कहीं जहां एक इतने बड़े आंदोलन में, इतनी बड़ी उसमें सिर्फ एक ये अभी केस हुआ है, आइस में 1 या 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें उनको मारा है, और इस पर्टिकुलर केस में तो ये अमेरिकन था, इमिग्रेंट था भी। तो जजमेंट एरर हो सकती है, हुई है, होती भी है, लेकिन सिर्फ उस जजमेंट एरर को आप मुद्दा बनाकर, अब पूरे वर्ल्ड में इसमें अभी चर्चा होगी, इंडिया में ज्यादा होगी क्योंकि इंडिया में ये चीजें होती ही रहती, तो मुद्दा तो बनेगा। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, कर्तव्य बोध होना बहुत जरूरी है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको एवरीडे इम्पैक्ट करता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी सूरत में एजिटेट करें, रिस्पॉन्ड करें, डोंट किल योर कॉन्शियस। चाहे आप ज्यादातर तो पीसफुली करें, लिखें, बात करें, लोगों से मिलें तो बताएं, डोंट वेस्ट योर टाइम, पिक अप दीज इश्यूज व्हिच एजिटेट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, तब आप आगे जीवन में बहुत सफल हो पाएंगे। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मेरे को लीडर नहीं बनना, मुझे नेता नहीं बनना, मेरे को किसी और, ध्यान रखें कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम खुद को भी आएगी। आज आप बचे हुए होंगे, हिंदुस्तान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट 20 साल हिंदुस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है, और आप सब लोग यंग हैं, सब लोगों के नेक्स्ट 20 साल इतने निकलेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों में से कोई भी एक आध बंदा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस
कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको पर्सनल लेवल पे ना हो, कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। और उसके लिए बेस्ट तरीका यही है, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम वे वेयर यू नो योर राइट्स वेरी वेल। तो हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू वेरी मच शाम को सुनने के लिए, और आई होप इट विल हेल्प यू इन सम वे। कर्तव्य बोध का ध्यान रखें।